Namaste everyone and welcome back to my channel. My name is Vaishali and you're watching me on Wing Life by Vaishali Sivaj. So today we'll be talking about the aviation school and institute in India and is it worth to join them. So let's get started. First of all, there are multiple aviation schools, academies, institute, whatever you call it. So I'm listing popular aviation institutes in India जो almost सबने सुने होंगे. So the first and the most popular aviation school is Frankfin, which is located all over the India. Then next is AHA, which stands for Air Hostess Academy, Bangalore and Delhi. I mean, it is located in Bangalore and Delhi. Bombay Flying Club College of Aviation, Universal Aviation Academy, Flywheel Aviation Academy and You Can Fly, which is located in Cochin, Delhi, Punjab and Bangalore. So first of all, we'll discuss कि aviation school join क्यों करते हैं लोग. Mainly they think that the aviation school or institute or academy they will provide them placement. Foremost thing. तभी लोग इतना ज़्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं. हम लोग इस पे भी आएंगे कि कितने पैसे लगते हैं कोई भी एविएशन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए. Second, they think that they will provide all the information regarding aviation things which will be asked in interview while they'll go for any interview in any company. So these are the two big myths. सबसे पहली बात तो कोई भी एविएशन अकेडमी won't give you placement. I mean they will give you placement but not as a cabin crew. We'll discuss it further in detail. Second, कभी भी cabin crew interview में आपसे aviation related कुछ भी नहीं पूछा जाता. They'll ask you about yourself, about your personal details and they'll check the confidence कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो बात करने में, कितनी अच्छी तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो. दैट्स ऑल मैटर्स. एविएशन के बारे में आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा बिकॉज कंपनी अगर जब आपको हायर करती है तो कंपनी में भी 3 months की ट्रेनिंग होती है. इन दोज 3 months दे विल ट्रेन यू, दे विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एविएशन, ऑल द डिटेल्स, ग्रूमिंग, communication skills, customer relations services, everything. So they won't ask you about all these details. They'll just ask you about yourself. Don't think कि आपको interviews में इनके बारे में कुछ भी पूछा जाएगा. Now I'll tell you कि कितनी फीस लगती है किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए. So a minimum of 1 lakh and it can extend to 1,50,000. So अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि मैं ये सारी बातें रिसर्च करके या किसी से सुनकर बोल रही हूँ तो ऐसा गलत है. आई एम सेइंग दिस ऑन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. I was a part of an aviation institute and it is the most popular aviation school in India, which is commonly known as Frankfin. So there I have paid 1,50,000 for 1 year. The full course is for 1 year and for 1 year they will ask you 1,50,000. So let's discuss in 1,50,000 what are the modules they will cover. So the modules are effective communication skills, aviation, grooming, hospitality, travel management which is also known as tourism, PD which stands for personality development and CRM which stands for customer relationship management. I would like to tell you one thing guys, जब भी आपको कोई भी कंपनी हायर करती है तो वो 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवाती है. इन सारे मॉड्यूल्स में से कंपनी जो भी आपको हायर करेगी दे विल कवर एविएशन, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो रही बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तो ये 3 चीज़ें कवर नहीं होती. इनफैक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहीं ना कहीं कवर होते हैं बिकॉज आपका एक लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट रहता है विच इज़ डेफिनेटली इंग्लिश बिकॉज दैट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज और वो सबको आनी चाहिए. और अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है, आपको बोलते वक्त प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट कैन बी सॉल्व बाय प्रैक्टिस. इफ़ यू प्रैक्टिस डेली, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स. येस, फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को जो बड़े लोग हैं उनको इंग्लिश आती ही होगी, बट आपके फ्रेंड्स को तो डेफिनेटली इंग्लिश आती होगी. टॉक टू देम इन इंग्लिश, इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड आपको अगर सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के लिए कहीं पे क्लासेस लगानी है तो आप एक इंडिविजुअल ट्यूटर भी लगा सकते हैं जो डेफिनेटली 1,50,000 तो नहीं चार्ज करेगा, उससे तो बहुत कम चार्ज होगा. तो आई थिंक सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, जिन लोगों का ड्रीम है कैबिन क्रू बनना, उनके लिए हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं. तो उनके लिए अगर फिर एक जो टॉपिक बचता है जो आपको एविएशन स्कूल में कवर करवाया जाता है विच इज़ कम्युनिकेशन,
तो कम्युनिकेशन के लिए आप कोई भी एक इंडिविजुअल ट्यूटर हायर कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारी क्लासेस भी होती है आपकी कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी 1,50,000 पे करके ये सब चीज़ें पढ़ना जो आपको फिर से कंपनी वापस से ट्रेन करेगी, तो इट्स नॉट वर्थ इट। So the next and very important point is placement. Do they provide placement? Yes, definitely. If they are taking such a big amount of 1,50,000, they'll definitely give you placement. But as a cabin crew, I doubt. Because to be a cabin crew, you need to crack the interview of any company. आपको इंटरव्यू तो क्लियर करना ही पड़ेगा. The interviewer will test you on certain points. बट येस, एविएशन स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो आपको होटल में या टूरिज्म में कहीं ना कहीं प्लेस करवा देते हैं बाय द एंड ऑफ 1 ईयर. बट अगर आपका गोल, जो आपका ड्रीम था कैबिन क्रू बनने का, अगर आपका अपना गोल भी आप अचीव नहीं कर पाए पूरा 1 साल देने के बाद, सो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने पैसे इस चीज़ में वेस्ट करने चाहिए. इंस्टेड research more on YouTube videos, read about the airline requirement and prepare yourself. Keep preparing yourself, talk in English, work on personality development and keep on giving the interviews. Don't feel sad or don't get upset if you are rejected in one interview. हर कंपनी का एक अलग क्राइटेरिया रहता है. अगर आप एक कंपनी के क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, क्या पता आप दूसरी कंपनी के क्राइटेरिया में फिट हो जाओ और दूसरी कंपनी आपको हायर कर ले. सो नेवर गिव अप. डोंट हैव दिस गिव अप एटीट्यूड एंड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग एंड गिव मोर एंड मोर इंटरव्यूज एज मच एज पॉसिबल. नाउ विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस जो मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं. आई थॉट कि कमेंट सेक्शन में बताने से अच्छा है आई विल गिव द आंसर्स इन द वीडियो इटसेल्फ, सो दैट अगर किसी और को भी वो सेम डाउट होगा, सो इट विल बी क्लियर फॉर ऑल. The first question is swimming necessary to be a cabin crew? I would say in domestic airline, it's not a mandatory requirement that you should know how to swim. But definitely it's a plus point because they will teach you ditching. Ditching means crash landing on water. For international airline, yes, you need to know how to swim. That is mandatory over there. But in domestic, in India, it is not a mandatory requirement. If you don't know how to swim, तभी भी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इंटरव्यू के लिए जा भी सकते हो और सिलेक्ट भी हो सकते हो. मेरे खुद के बैच में इतने सारे लोग थे जिनको स्विमिंग नहीं आती थी. But don't stop yourself by anything. Just go and give the interview. So the next question is, which company provides more salary, Indigo or SpiceJet? दोनों कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है. दोनों कंपनी का इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने का तरीका बहुत अलग अलग है. बट जो कट पिट के हाथ में, लाइक महीने के हाथ में जो आती है सैलरी, वो ऑलमोस्ट सेम होती है. इनिशियली यू विल गेट इन बिटवीन 30 to 40,000. यस, ऑलमोस्ट इतना ही मिलता है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइंग आवर्स एज वेल. आप जितना ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स करेंगे उतना ज़्यादा आपका सैलरी बढ़ेगा. लाइक पर आफ्टर फ्यू आवर्स, लाइक 50 और 60 आवर्स के बाद पर आवर पे आपका सैलरी बढ़ता रहता है. और फिर आपको ले ओवर अलाउंसेस भी मिलते हैं जो आप जैसे आपका बेस सिटी है. फॉर एग्जांपल आई एम फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली, तो अगर मेरा ले ओवर है कोलकाता में या बैंगलोर में या बॉम्बे में या कोई भी और जगह पे, तो द कंपनी विल पे मी टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर सिटी. तो मतलब आपका घूमने का घूमना भी हो गया, पैसे के पैसे भी मिल गए, मतलब आपको घूमने के पैसे मिल रहे हैं. So it's a great job. So the next question is, I have a tattoo, can I apply for the interview? It depends. आपका tattoo कौन सा tattoo है. If it's a visible tattoo, like if it will be visible outside the uniform, जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू, उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था टैटूज के बारे में कि आपका अगर यूनिफॉर्म यहाँ तक है, ट्यूनिंग यहाँ तक है, इसके बाहर आपका पूरे हाथ पे कोई टैटू है, तो the company won't take you because it is not allowed. It is a mandatory requirement that you should not have tattoos or scars. Like birthmark is a different thing, but like burn scars or cut marks, जो वो टूटे दिल के आशिक, वो वाले कट मार्क्स अलाउड नहीं होते हैं. So it depends on person to person as well. क्या पता the candidate has such a beautiful personality कि कंपनी आपको ले ही ले कि कोई बात नहीं, आप कंसील कर लेना बट आ जाओ. So don't stop yourself. ऑलवेज गो फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए जाओ भी जाओ, आगे परिणाम क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट डिपेंड्स. बट डोंट स्टॉप योरसेल्फ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दी माई हाइट इज 153 centimeters, कैन आई अप्लाई फॉर द इंटरव्यू? आई एम really sorry because it's a mandatory requirement to be at least 155 centimeter.
ऐसा नहीं है कि छोटी लड़कियां अच्छी नहीं दिखती या वो कैबिन क्रू नहीं बन सकती है, बट ये रिक्वायरमेंट इसीलिए रखा जाता है बिकॉज अ कैबिन क्रू हैज़ टू क्लोज द ओवरहेड बिन्स, जो फ्लाइट में जहाँ पे बैग्स रखे जाते हैं, तो वो बंद करने के लिए यू शुड बी 155 सेंटीमीटर्स एंड अबव। तो ये क्राइटेरिया कुछ सोच समझ के रखा गया है, तो आई एम रियली सॉरी, बट अगर आप उससे कम हो तो यू कैन नॉट अप्लाई टू बी अ कैबिन क्रू, बट डेफिनेटली यू कैन अप्लाई टू बी अ ग्राउंड स्टाफ। लाइक अगर आपका एविएशन ही पैशन है, आपको एविएशन रिलेटेड ही जॉब करना है, तो एविएशन में बहुत सारी जॉब्स होती है, कैबिन क्रू के अलावा भी बहुत सारी पोजीशंस होती है, डेजिग्नेशंस होते हैं, तो गो फॉर दैट and I hope you will get selected. So the last question is, when will be the next hiring? I really don't know because due to this pandemic बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। एविएशन भी हॉस्पिटैलिटी में ही आता है, लाइक इन जनरल टर्म्स। तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है एविएशन फील्ड में, बी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। हर जगह पे ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से जॉब्स की कमी हो रही है, तो आई रियली डोंट नो कि नेक्स्ट हायरिंग कब होगी। वैसे मैनेजरियल डेजिग्नेशन की हायरिंग कहीं कहीं चल रही है, सो मैं एक बार अच्छे से रिसर्च करके आई लेट यू नो इन माई नेक्स्ट वीडियो कि कौन कौन सी जगह पे हायरिंग चालू है एंड आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। So that's all for today's video. I hope you liked the video. Please do give it a thumbs up if yes, and subscribe to my channel because it really motivates me to make more and more videos for you all. And do let me know in the comment section below कि आप मुझे और कौन कौन सी videos बनाते हुए देखना चाहते हैं, and I'll definitely make a video on your request. So that's all for today. Thank you so much. Stay safe.